প্রতিরক্ষার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে বাংলাদেশের সামনে। এবার বাংলার আকাশ দাপিয়ে বেড়াবে রাফাল যুদ্ধ বিমান ধ্বংসকারী अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देख रहे हैं स्मैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी बांग्लादेश फाइनली वॉरशिप्स हासिल करने जा रहा है। वॉरशिप्स और साथ ही यहाँ पे जो फाइटर जेट्स हैं वो भी हासिल करने जा रहा है। तो बांग्लादेश ने फाइनली जो फाइटर जेट्स हैं उनकी डील चाइना के साथ साइन कर दी है। बांग्लादेश में बहुत जल्द J-10C आने वाले हैं फाइटर जेट्स। इंडिया ने बहुत कोशिश की थी कि बांग्लादेश ये जो हथियारे हैं वो हासिल ना कर सके, लेकिन इंडिया को आखिरकार अपनी इस कोशिश में नाकामी फेस करना पड़ रही है और बांग्लादेश ने चाइना के साथ ये डील साइन कर ली है और अपनी जो डिफेंस पावर है उसको कितना मजबूत करने जा रहा है। अभी आप लोगों के साथ पहले ये रिपोर्ट शेयर करेंगे। रिपोर्ट आप लोगों ने आखिर तक देखनी है। वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। প্রতিরক্ষার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে বাংলাদেশের সামনে। এবার বাংলার আকাশ দাপিয়ে বেড়াবে রাফাল যুদ্ধ বিমান ধ্বংসকারী চীনের শক্তিশালী যুদ্ধ বিমান J-10C। একটি বা দুটো নয়, 1 ডজন চীনা যুদ্ধ বিমান কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকার। গত মার্চে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সাথে বৈঠকে চীনের তৈরি জঙ্গি বিমান J-10C কেনার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। 26 মার্চ 4 দিনের সফরে চীনে গিয়েছিলেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। সফর নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং বিবৃতিতে জানিয়েছিল, 2 নেতার মধ্যে তিস্তা নদীর প্রকল্পে চীনের সহায়তা, মাল্টিপল রোল কমব্যাট এয়ারক্রাফট কেনা, Walton Switch, stylish and elegant. বাংলাদেশের বন্দরগুলোর সঙ্গে চীনের কুনমিংয়ের বহুমাত্রিক সংযুক্তির মতো বিষয়গুলো নিয়ে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীকে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম করে তুলতে 3 বাহিনীর আধুনিকায়ন চলছে। এর অংশ হিসেবে বিমান বাহিনীর জন্য চীনের তৈরি J-10C যুদ্ধ বিমান কিনতে চায় বাংলাদেশ। সরকারের পক্ষ থেকে 12টি J-10C জঙ্গি বিমান কেনার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। এই ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। গণমাধ্যম বলছে, প্রধান উপদেষ্টার সফরে আগে থেকেই J-10C কেনার প্রাথমিক আলোচনা শুরু হয়েছিল বাংলাদেশ ও চীনের কর্মকর্তা পর্যায়ে। চীনে প্রধান উপদেষ্টার সফরেও এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সফরের পর 2 দেশের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা অব্যাহত আছে। চীনা যুদ্ধ বিমান J-10C শক্তিশালী এক যুদ্ধ বিমান। গ্লোবাল টাইমস এবং প্রতিরক্ষা বিষয়ক সংবাদ ও বিশ্লেষণ ভিত্তিক ওয়েবসাইট দ্য ওয়ার জোনের তথ্যমতে চীনের তৈরি জঙ্গি বিমান J-10C ভিগোরাস ড্রাগন নামে পরিচিত। এটি মাল্টি রোল কমব্যাট এয়ারক্রাফট। 4র্থ প্রজন্মের এই যুদ্ধ বিমানের বহুমাত্রিক অভিযানের সামর্থ্য আছে। এটি সুপারসনিক গতিতে উড়ে গিয়ে শত্রুপক্ষের জঙ্গি বিমান শনাক্তকরণে খুবই দক্ষ। আকাশ থেকে আকাশে ও আকাশ থেকে ভূমিতে হামলার সক্ষমতা আছে। 200 কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে সফলভাবে আঘাত হানতে পারে এই যুদ্ধ বিমান। অন্যান্য যুদ্ধ বিমানের সাথে সংযুক্ত হয়ে অভিযানে যুক্ত হতে পারে। এটি প্রযুক্তি, গতি এবং শত্রুর নজর এড়িয়ে আক্রমণ পরিচালনা এবং নজরদারিতেও সক্ষম। গত মে মাসে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধেও চীনের তৈরি J-10Cর প্রযুক্তিগত এবং সামরিক সক্ষমতা প্রমাণিত হয়েছে বলে দাবি করেছে পাকিস্তান। ইসলামাবাদ তখন বলেছিল, তখন প্রথমবারের মতো কোনো সম্মুখ লড়াইয়ে যুক্ত হয়েছিল J-10C। এই যুদ্ধ বিমান দিয়েই ফ্রান্সের তৈরি রাফাল ভূপাতিতের দাবি করেছিল পাকিস্তান। আর এখন এই যুদ্ধ বিমান কিনলে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা সক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। জোহরা চৌধুরী সেতু, 71।
पे बांग्लादेश अब ये फाइटर जेट्स हासिल करने जा रहा है, जेट-10C। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 12 जो फाइटर जेट्स हैं बांग्लादेश हासिल करने जा रहा है। और बांग्लादेश की एयरफोर्स को इसकी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत थी, लेकिन शेख हसीना के दौर में इंडिया के प्रेशर की वजह से शेख हसीना कभी ये डील साइन ही नहीं कर सकी और बांग्लादेश की जो फोर्सेस हैं उनको मजबूत ही नहीं बनाया गया। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के आने के बाद बांग्लादेश की जो फोर्सेस हैं उनको मजबूत बनाया जा रहा है, चाहे वो ठीक है मिलिट्री हो, चाहे वो नेवी हो, ठीक है, चाहे वो एयरफोर्स हो, सारी की सारी फोर्सेस को मजबूत बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे एयरफोर्स का मजबूत होना किसी भी एक फ़ोर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब भी कोई अटैक दुश्मन आपकी सरजमीन पर करता है तो सारों से पहले आपने अपने फाइटर जेट्स के थ्रू मदद से ही उन पे हमला करना होता है। तो यहाँ पे ऐसे जेट्स का होना बहुत ज़रूरी है जिनमें इतनी कैपेबिलिटी हो कि उसको इस्तेमाल करके आप फाइट कर सकें। तो यहाँ पे फाइनली बांग्लादेश और चाइना के दरमियान ये डील साइन हुई है। ना सिर्फ जेट-10C बांग्लादेश हासिल करने जा रहा है बल्कि यहाँ पे बांग्लादेश वॉरशिप्स भी हासिल करेगा। बांग्लादेश अपनी जो नेवी है उसमें अहम किस्म की चाइनीज़ मेड वॉरशिप्स जो हैं उनको शामिल करेगा। यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की सिचुएशन को देखें तो पीछे जो वॉर हुई जिसमें पाकिस्तान के जो JF-17 थंडर हैं जो चाइना और पाकिस्तान ने मिल के तैयार किए हैं, उन्होंने इंडिया को बहुत बुरी शिकस्त दी थी, जिसके बाद से हर तरफ JF-17 थंडर तैयारों का जो की डिमांड जो है वो बढ़ गई थी। यही वजह है कि बांग्लादेश ने राफेल बाय करने की बजाय जेट-10C चाइना से लेने का फ़ैसला किया है क्योंकि ये ठीक है जो थंडर तैयारे हैं उनके साथ मिलती जुलती टेक्नोलॉजी है। तो आप लोग यह क्या कहेंगे, बांग्लादेश की जो पावर है वो कितनी तेज़ी से आगे मजबूत होने जा रही है कि बांग्लादेश इंडिया के शाना बशाना आके खड़ा हो चुका है और इंडिया की जो रातों की नींदें हैं वो उड़ गई हैं और इंडिया को समझ नहीं आ रही कि हम करें तो क्या करें क्योंकि बांग्लादेश किसी भी किस्म का प्रेशर जो है इंडिया का अब नहीं ले रहा और जो तमाम फैसले हैं वो इंडिपेंडेंट होकर किए जा रहे हैं। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का जो भी कहना है लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।